Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class. Hope you all will be fine. Today we will start chemistry 9th from chapter number 6. And the name of chapter is solutions on page number 96 and 97. First of all, we will see the definition of solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. One thing about the solution is that it is a mixture, and in mixture the substances combine physically without any fixed ratio. यानी जिन चीज़ों से आप सॉल्यूशन बना रहे होते हैं उनको आप किसी भी रेशो में मिक्स कर सकते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं होगी. Second thing is that solution is a homogeneous mixture. And what is meant by homogeneous? Homogeneous is a combination of two words. Homo means same and geneous means phase. It means the substances which combine to form solution appear in one phase. For example, if we are preparing sugar solution, by adding sugar in water, it appears in one phase. कि आपको solution के अंदर sugar अलग से नज़र नहीं आएगी, water अलग से नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो दोनों मिलकर एक ही शक्ल इख्तियार कर लेंगे. Third thing about solution is that solutions have uniform composition throughout. What is meant by uniform composition? इसको आप इस तरह से देखें कि जैसे आप sugar solution बना रहे हैं, तो जब आप शुगर को वाटर में ऐड करते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं तो वो वाटर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. अब उसके बाद जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको हर सिप में शुगर का एक जैसा टेस्ट फील होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपको एक सिप में तो बहुत ज़्यादा शुगर फील हो, दूसरे में कम फील हो और तीसरे में बिल्कुल भी ना फील हो. ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो जो शुगर है वो उसके अंदर इक्वली मिक्स होके बना देते हैं. इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी. उसके बाद solutions are the homogeneous mixture of two or more substances. ये जो two or more substances हैं ये क्या होंगे? ये components होते हैं solutions के. इनको हम कहते हैं components of solution. Commonly there are two components of solution. Number one is solute, which is used in smaller quantity, and number two is solvent, which is used in larger quantity. इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. जो कम मिकदार में आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन बनाने के लिए उसको हम सोल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल, शुगर सोल्यूशन के अंदर शुगर क्या होगी? हमारा सोल्यूट. वाटर क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट. इसी तरह से हम सॉल्ट सोल्यूशन भी बना सकते हैं. तो सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट हमारा सॉल्यूट होगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा. These are the examples of solution having two components only. But we have some solutions in which more than two components are present. For example, soda water example is given in your book. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग लेमनेड, यानी लेमन का जो शरबत आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या डालते हैं? उसमें आप शुगर भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, लेमन जूस भी डालते हैं और वाटर भी डालते हैं. अब चूँकि ये सारी चीज़ें आप वाटर में ऐड कर रहे होते हैं तो वाटर तो हमारा सॉल्वेंट है, लेकिन बाकी सब जो चीज़ें इसमें डाल रहे हैं वो क्या है? हमारी सॉल्यूट हैं. तो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं. उसके बाद है एक वर्ड aqueous solution. Aqueous solution, aqua word is used for water. तो जो solutions आप बना रहे हैं जिसमें आप water को as a solvent use कर रहे हैं, उन solutions को हम कहते हैं aqueous solution. Aqueous solutions are those solutions which are formed by dissolving any substance in water. कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो शुगर है, सॉल्ट है या कोई और चीज़ है, उसको वाटर में डिज़ोल्व करके जब हम सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं तो उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन. यानी उसमें हमारा सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होगा.
Next is physical states of solution. Commonly we are familiar with the liquid solution, for example sugar solution, salt solution, lemonade, soda water, etc. These are all the examples of liquid solutions. But other kind of solutions can be found. Solution can found in the three states of matter. They can be found in the liquid state, gaseous state and solid state, depending upon the nature of solvent. The nature of solution depends upon the nature of solvent. कि जिस तरह का जो सॉल्वेंट है उसकी जो स्टेट होगी वैसा ही आपका सॉल्यूशन की भी स्टेट होगी. फॉर एग्जांपल लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें आप एग्जांपल है सी वाटर. अब वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं. सी वाटर के अंदर, सी वाटर आपको पता है कि सॉल्टी होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं. चूँकि हमारा सॉल्वेंट वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, तो इसलिए ये लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होगा. सिमिलरली गैसियस स्टेट में एयर बेस्ट एग्जांपल है. एयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस. तो इसमें जो हमारे सॉल्यूट्स हैं वो भी गैसियस हैं, फॉर्म में हैं, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी गैसियस स्टेट में है. तो ये जो एयर है ये हमारा सॉल्यूशन है लेकिन इसकी स्टेट है गैसियस. नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में जो हमारा सॉल्यूट होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा. इसकी एग्जांपल्स हैं अलॉय. ये वर्ड आप अपनी डेफिनेशन के साथ नीचे देखेंगे एग्जांपल्स में भी. और एक वर्ड आप जो इंट्रोडक्शन में, ये टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन से है, इंट्रोडक्शन में एक वर्ड अमलगम यूज़ हुआ हुआ है. तो अलॉय एंड अमलगम इज सिमिलर, दे हैव सिमिलर मीनिंग्स. अलॉयस क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. अब फ़ौरन आपके माइंड में आएगा कि मेटल्स तो सॉलिड फॉर्म में होती हैं तो वो आपस में कैसे मिक्स हो सकती हैं. अलॉय बनाने के लिए पहले मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, उसके बाद उन्हें मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद फिर उनको दोबारा सॉलिडिफाई कर लिया जाता है. इस तरह से वो आपस में मिल के एक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और उसको हम कहते हैं अलॉय या अमलगम. एग्जाम्पल ऑफ अलॉय इज ब्रास. ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर और जिंक दो मेटल्स हैं, इनको मिला के इनके कॉम्बिनेशन से जो अलॉय बनता है उसको हम कहते हैं ब्रास. इसी तरह ब्रॉन्ज एक अलॉय है एंड इट इज़ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक यू सो मच.